اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا یہ کلمہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایوہا یہ بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو الفاظ جب ایک ساتھ آ جائیں تو زور پیدا کرتے ہیں معنی میں۔ یا ایوہا الذین، اے وہ سب لوگو، الذین وہ سب لوگ، آمنو میں آمنا وہ ایک ایمان لایا، اور واو الف جمع کے لیے، جمع بنانے کے لیے ہمارے پاس اور کون سے حروف ہیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون، یہ جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اضافی جب بھی کسی کلمے کے آخر میں لگے ہوں گے تو یہ جمع کے معنی دیں گے۔ آمنا وہ ایک ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے یا وہ سب جو ایمان لائے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ لا یسخر، لا ہم نے پڑھا ہے، اردو میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے لا حاصل، لا جواب، تو اس کے معنی نہیں۔ یسخر، یسخر میں یا اور سخر یہ دو کلمے ہیں۔ یا ہمیں پتہ ہے کہ مضارع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کون سے کلمے ہیں جو مضارع بناتے ہیں؟ یا، تا، الف اور نون۔ یا جب بھی کسی کلمے کے شروع میں آئے گا تو یہ وہ کے معنی دے گا، تا تم یا آپ، الف میں، نون ہم، یہ مضارع بنائیں گے۔ مضارع کے معنی کیا ہیں کہ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے حال یا مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے۔ یسخر یا وہ سخر، سخر ہم اردو میں جیسے استعمال کرتے ہیں مسخرہ، تمسخر، مذاق اڑانا، اس کے معنوں میں آتا ہے۔ لا یسخر نہ وہ مذاق اڑائیں، نہ وہ تمسخر اڑائیں۔ قوم، قوم ہم اردو میں کلمہ استعمال ہوتا ہے قوم، کوئی قوم، من سے، قومن کسی قوم کا، یعنی نہیں مذاق اڑائے، نہیں تمسخر اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا۔ عسا، عسا، عسا کے معنی ہیں ممکن ہے، ممکن ہے۔ اس کو اردو میں ربط کے لیے آپ اس کو ایسے یاد کر لیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے، عسا ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کہ یکونو، یکونو میں یا اور کون جمع واو الف، واو الف ہمیں پتہ ہے کہ جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا وہ کے معنی دے گا، مضارع ہے۔ کون، کون کے معنی جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کون و مکان، تو کون جو موجود ہو یا ہونے کے معنی دیتا ہے۔ یکونو
वो सब हूँ, वाव अलिफ जमा के लिए, वो सब हूँ। खैरन, खैरन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं खैर, बेहतर, भले, यानी कहीं हो सकता है कि वो हूँ बेहतर। मिनहुम, मिनहुम में मिन और हम किसके मानी देता है? हमने पढ़ा है हु, हा, हुमा, हुम और हुन्ना। हु एक मुज़क्कर के लिए, हा एक मुअन्नस के लिए, हुमा दो मुअन्नस, दो मुज़क्कर, एक मुअन्नस या एक मुज़क्कर के लिए, हम तीन या तीन से ज्यादा मुज़क्कर के लिए, और हुन्ना तीन या तीन से ज्यादा मुअन्नस के लिए, और ये गायब के लिए इस्तेमाल होता है। खैरम मिनहुम, तुम में से, तुम में से। वला, वा और ला नहीं। निसाउन, निसाउन जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं निस्वा, तो ये निसा से है, हुकूक निस्वा, औरत। और ना औरतें, मिन निसाइन औरतों से, मिन से निसा औरतें, और ना औरतें औरतों से। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब औरतों का जिक्र अलग से आ गया तो फिर यहाँ पे कौम से मुराद मर्द होंगे। ये नहीं हम कहेंगे कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, बल्कि हम कहेंगे मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। ठीक, दोबारा से देखते हैं। ए वो सब लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर नहीं वो मजाक उड़ाएं, कौमम मिन कौमिन मर्द दूसरे मर्दों का। असा मुमकिन है, अन के यकूनु वो हूँ, वो सब हूँ, खैरन बेहतर, मिनहुम उनसे, यानी जो मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे मर्दों का, हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा हो वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउन और ना ही औरतें, मिन निसाइन औरतों से। असा ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, अन के यकुन्ना वो हों, खैरन बेहतर, मिनहुन्ना उनसे। हुन्ना किसके लिए है? औरतों के लिए, तीन या तीन से ज्यादा गायब के लिए। ये जो औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ा रही हों, हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा हो वो उनसे बेहतर हों। वाला और ना, तलमीजू, तलमीजू में ता जमा लम्स जमा वाव अलिफ, वाव अलिफ जमा बनाने के लिए है, ता मुजारे की अलामत है, तुम या आप। तलमीज लम्स के मानी हैं ऐब जोई करना, आंख से इशारा करना। ये जब से हमने ये कोर्स शुरू किया है, ये पहला लफ्ज़ है जो कि अरबी ज़ुबान में है, अरबी ज़ुबान का है, और उर्दू में इसके मानी नहीं हैं। ये पहला लफ्ज़ है। और याद रखिए, जो हमने शुरू में ब्रेक किया था तो हमने कहा था कि 0.5% ऐसे अल्फाज आएंगे जो कि अरबी के अल्फाज हैं, और अरबी उनके उर्दू में आपको मानी नहीं मिलेंगे, और आपको डिक्शनरी में से देखने पड़ेंगे या याद करने पड़ेंगे। तो ये वो पहला लफ्ज़ है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, जिसके माने तलमीज़ु नहीं तुम ऐबजोई करो, सब ऐबजोई करो। अनफुसाकुम, अनफुसा और कुम ये दो अल्फाज हैं। कुम हमें पता है कि मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है,
मुखातिब के लिए और क्या अल्फाज हैं? का, की, कुमा, कुम और कुन्ना। और यहाँ पे क्या लफ्ज़ आए हैं? यहाँ पे कुम इस्तेमाल हुआ है, अपनी जानू को। नफ्स जान, कुम अपनी जानू को, यानी अपनी जानू को क्या ना करो? ऐब जोई ना करो, ऐब मत निकालो। अपनी जानू से क्या मुराद है? इंसान जब किसी दूसरे की किसी ऐब को तलाश करता है, ऐब जोई करता है, तो वो असल में अपनी ही ऐब जोई कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पे लतीफ़ अंदाज में अनफुसकुम इस्तेमाल हुआ है कि अपनी जानू को या अपनी जानू की ऐबजोई ना करो। वला तनाबजू, और ना तनाबजू। तनाबजू में ता मुजारे की अलामत है, नाबज और वाव अलिफ। वाव अलिफ जमा के लिए है, नाबज के मानी हैं बुरे अलकाब रखना, चिढ़ने वाले नाम रखना, चिढ़ने वाले नाम रखना। और ना बुरे अलकाब से पुकारो, बिल अलकाब, बा उर्दू में इस्तेमाल होता है के साथ, और अलकाब, अलकाब लक़ब उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये कलमा। तो बुरे अलकाब से पुकारो अलकाब के बदले, वला तनाबजू, और नहीं तुम चिढ़ने वाले नामों से पुकारो अच्छे अलकाब के बदले। बिसल इस्म, बिसा बहुत ही बुरा है। बिसा का एक और जो उल्ट लफ्ज है निमा, बहुत ही अच्छा है। और बिसा बहुत ही बुरा है, 1.5 में है, ये बार बार रिपीट होते हैं। बिसल इस्म बहुत ही बुरा है। इस्म नाम, नाम रखना, नाम पैदा करना, शोहरत पाना। अल-फुसूक फिस्क में, फिस्क में नाम पैदा करना बहुत ही बुरा है। बादल ईमान, बाद हम उर्दू में भी ये कलमा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाद में। अल ईमान, ईमान, ईमान के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत ही बुरा है। वमन, और जो, मन उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, ये 1.5 में है, बार बार रिपीट होता है। और जो, लम नहीं, लम के मानी हैं नहीं, ला के मानी भी हैं नहीं, और लम के मानी भी हैं नहीं। लेकिन लम जब भी किसी जुमले के शुरू में आएगा तो ये उसको माजी में ले जाएगा जुमले को। आगे हम देखते हैं कि कैसे। लम नहीं, यतुब, यतुब में या मुजारे की अलामत है, और तुब तौबा से, और वो तौबा करता है या वो तौबा करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब मुजारे की अलामत लगी हो तो इसका तर्जमा हाल या मुस्तकबिल में करना है। लेकिन जब साथ में लम होगा तो वो इसको माजी में ले जाएगा। और जिसने नहीं तौबा की, ये नहीं कहेंगे कि और जिसने नहीं तौबा करता है या जो तौबा करेगा, बल्कि कहेंगे और जिसने नहीं तौबा की। फ़उलाइका, पस वही लोग हैं, हुमुज़्ज़ालिमून, जालिमों में से। जालिम जमा, वाउनून जमा की अलामत, जालिम की जमा। फ़उलाइका, पस वही लोग हैं, हुमुज़्ज़ालिमून, हम के भी मानी वो सब, उलाइका वो सब। दो अल्फाज एक साथ आ गए तो इनके मानी क्या होंगे? जोर दिया जा रहा है, वही लोग हैं जो कि जालिमीन में से हैं, जालिम हैं। कौन? जो जिसने तौबा नहीं की, ये काम किया लेकिन उसके बाद तौबा नहीं की। अगली आयत पे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वही कलमे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। ए वो सब लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो। इज्तनिबू, इज्तनिबू में
ये कलमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इज्तनाब, इज्तनाब करना। और जमा वाव अलिफ, वाव अलिफ किसके लिए है? वाव अलिफ, वाव नून और या नून जमा बनाने के लिए है। इज्तनाब करो, बचो, कसीरन, कसीरन उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कलमा, ये हम कसरत से है, कसीरन बहुत ज्यादा, मिनज़्ज़न्नि, मिन से 1.5 में है, बार बार रिपीट होता है। अज़्ज़न्नि, ज़न्नी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जन हम कहते हैं हुस्न जन से काम लें, यानी या बदजन नहीं हूं, ठीक, हम हुस्न जन से काम लें, क्या मतलब? यानी अच्छा गुमान रखें। तो जन का क्या मतलब है? गुमान, जन गुमान। इन्ना बेशक, इन्ना हो, अन्ना हो, इन्ना मा इनके मानी हैं बेशक, बार बार रिपीट होने वाले कलमे हैं। बाद, बाज जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ बाज के मानी में आता है। अज़्ज़न्नि बाज गुमान, इस्म, इस्म गुनाह, इस्म के मानी है गुनाह। बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बाज गुमान गुनाह हैं। वला तजस्ससु, और ना, तजस्ससु में क्या है? ता जमा जसस और जमा वाव अलिफ। वाव अलिफ हमें पता है जमा बनाने के लिए है, और जसस है जासूसी से, जासूसी करना, टो में लगे रहना। और ता मुजारे की अलामत है, मुजारे की और क्या अलामत हैं? या, ता, अलिफ और नून। या वो, ता तुम या आप, अलिफ में और नून हम। यहाँ पे क्या है? तजस्ससु, और ना तुम जासूसी करो, वाला और ना यग़्तब, यग़्तब, यग़्तब या जमा गतब। ये कलमा हम उर्दू में कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम कहते हैं गीबत, गीबा, ये है गीबत। और ना वो गीबत करे, कौन? बादुकुम, ये क्या कलमे है? बाद जमा कुम, तुम में से बाज, बाद बाज के साथ, यानी कि तुम में से बाज, बाज के लिए यानी कि आपस में, यानी कि और ना आपस में एक दूसरे की गीबत करें। आयुहिब्बु, हमें पता है कि अलिफ अमर के लिए इस्तेमाल होता है, अलिफ इस्तिफामिया इस्तेमाल होता है जिसके मानी होते हैं क्या, और अलिफ में के लिए भी इस्तेमाल होता है मुजारे बनाने के लिए। अब यहाँ पे अलिफ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या के लिए। और ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये क्या के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस्तिफामिया इस्तेमाल हो रहा है? ये जुमले से पता चलेगा। आयुहिब्बु, आयुहिब्बु में अलिफ, या और हिब, हुब, अलिफ क्या के लिए, या वो, हुब महबूब, मोहब्बत, इससे है पसंद करना। आयुहिब्बु क्या वो पसंद करता है, कौन? अहदुकुम, अहद एक, कुम मुखातिब के लिए हमें पता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अहदुकुम तुम में से एक, अन के, अन के, याकुला, याकुला वो, और अकुल, अकुल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जैसे कहते हैं अक्ल हलाल, हलाल कमाई, अकुल खाना। वो या मुजारे के लिए है,
याकुल वो खाए, लहम, लहम गोश्त। हम उर्दू में कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं? हम कहते हैं लहमियात, गोश्त। अखीही, अखीही में अखी भाई को कहते हैं, और हु या ही साथ में है। ये किसके लिए है? ये गायब के लिए है, एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हु, हा, हुमा, हुम और हुन्ना। अखी ही, उसके भाई का, लहमा गोश्त, अखी ही अपने भाई का, उसके भाई का, मईतन, मईतन जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मैयत, मैयत के लिए मुर्दा, कि जब कि वो मरा हो। फ़करिहतुमूहु, फ़करिहतुमूहु में फ़ा जमा करह जमा तुम जमा वाव अलिफ और जमा हु। हु हमें पता है किसके लिए है? थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए, एक मुज़क्कर के लिए। फा पस हम पहले पढ़ चुके हैं, 1.5 में है। कराहा, कराहा उर्दू में हम कहते हैं कराहत से, जैसे कि नापसंद करना। तुम वाव अलिफ जमा के लिए। पस तुम कराहत खाओगे, पस तुम्हें कराहत होगी, पस तुम सब नापसंदीदगी का इजहार करोगे। किस चीज से? कि खाओ अपने भाई का गोश्त जबकि वो मरा हो। और ये किस चीज से ताबीर किया गया है? गीबत से। वत्तकुल्लाह, और अत्तकुल्लाह, इत्तक तकवा से है, वाव अलिफ जमा के लिए, अल्लाह अल्लाह, और डरो, तकवा इख्तियार करो अल्लाह से। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, तव्वाबुन तौबा कबूल करने वाले हैं, रहीमुन रहम करने वाले हैं। रहीमुन फ़ईल उनके वजन पे है, यानी कि हमेशा से हमेशा तक, अज़ल से लेके अबद तक रहम करने वाले हैं। इसमें भी अगर आप देखें, एक दफ़ा दोहराई कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो सब लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू इज्तनाब करो, सब इज्तनाब करो, कसीरन बहुत ज़्यादा, मिनज़्ज़न्नि गुमान करने से, इन्न बेशक, बाद ज़न्नि बाज गुमान, इस्म गुनाहें, वला तजस्ससू और ना तुम जासूसी करो, ना तुम टो में लगो, वला यग़तब और ना वो गीबत करे, बादुकुम बादा आपस में एक दूसरे की, बाज दूसरे बाज की। अयुहिब्बु क्या वो पसंद करता है, क्या उसको ये पसंद है कि अहदुकुम तुम में से एक, अन याकुला कि वो खाए, लहमा गोश्त, अखीही अपने भाई का, मैतन जबकि वो मरा हो। फकरिहतुमूहु पस तुम कराहत का इजहार करोगे, नापसंद करोगे इससे। वत्तकुल्लाह और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, तव्वाबुन रहीम तौबा कबूल करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। ठीक, इसमें अगर हम देखें कि कितने अल्फाज हैं जो कि हमारी उर्दू ज़ुबान से हैं, या आमना, इज्तनाब, कसीर, जन, बाद, जन, वा, ला, जासूसी, जसस, गीबत, बाद, हुब, महबूब, अहद, अकुल, लहम, अखी, मैता, कराहा, तकवा, अल्लाह, तव्वाब तौबा से, रहीम रहम से। और इसी तरह अगर हम आयत नंबर 11 में भी देखें तो या
आमना, ला, मस्खरा, तमस्खुर, कौम, कूनू, खैर, वा, ला, निसा, निस्वा से, कूनू, होना, खैर, बेहतर, वा, ला, अनफुस, वा, ला, अलक़ाब, लक़ब से हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फ़िस्क, बाद, ईमान, वा, तौबा और ज़ालिम। ठीक है जी, ये आज हमारी आयत नंबर 11 और 12 मुकम्मल हुई। अब आप लोगों के कोई सवाल हैं तो हम उसकी तरफ चलते हैं।